अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सीएम रेवंत रेड्डी ख्वातीन के लिए मुफ्त बस स्कीम को इलेक्शन में किए गए वादे के मुताबिक नाफिज कर रहे। इन बातों का इजहार जगह रेड्डी ने किया है। आज आरोग्यश्री के तहत भी 10 लाख रुपए लागू किए जा रहे हैं। जगह रेड्डी ने कहा है कि पीसीसी सदर काम कर रहे संगारेड्डी हल्के के अफसरान को मेरी हिदायत पर अमल करना होगा और हुकाम को नजरअंदाज ना करें। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मेरी बीवी निर्मला जग्गा रेड्डी को संगारेड्डी हल्के में हर सरकारी तकरीब के लिए बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आज सोनिया गांधी की सालगिरह है, उन्हें सालगिरह मुबारक हो। జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ జిల్లా అధికారులకు అట్లాగే నియోజకవర్గం సంబంధించి సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఉన్న అందరు అధికారులకు అంటే ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది, అధికారులందరూ కూడా తెలిసిన విషయమే కాబట్టి నేను ఒక వీడియో రిలీజ్ చేయడం జరుగుతున్నది। ఈ వీడియోలో ముఖ్య అంశాలు ఏంటంటే సంగారెడ్డి నియోజకవర్గం సంబంధించి ఈరోజు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున్ ఖార్గే, ప్రియాంక గాంధీ గారి యొక్క నాయకత్వంలో, రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క నాయకత్వంలో ఈరోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈరోజు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ ఆదేశాలు ఏ పథకాలు అయితే ఉన్నాయో ఆ పథకాల్లో అమల్లోకి వచ్చే ఈరోజు ముఖ్యంగా మన సోనియా గాంధీ గారి యొక్క బర్త్డే సందర్భంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా సోనియా గాంధీ గారికి బర్త్డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సోనియా గాంధీ గారికి ఈరోజు ఆమె బర్త్డే సందర్భంలో సోనియా గాంధీ గారి యొక్క బర్త్డే సందర్భంలో ఈరోజు ముఖ్యంగా ప్రధానంగా ఈ ఉచిత ఆర్టీసీ ఉచిత ప్రయాణం ఆడవాళ్ళందరూ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అందరూ కూడా ఆర్టీసీ బస్సులో ఎక్కడైనా ఉచితంగా టికెట్ డబ్బులు పెట్టుకోకుండా ఉచితంగా తిరిగే ఒక సౌకర్యం సోనియా గాంధీ గారు ఆ రోజు ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోలో మహిళలు ఆదరించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఇచ్చిన మహిళలకు గిఫ్ట్గా ఈరోజు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు गांधी भवन में तेलंगाना की बानी और एआईसीसी लीडर सोनिया गांधी की 78वीं यौम पैदाइश की तकरीबात का इनेकाद किया गया। साबिक एमपी वी हनुमंत राव ने 78 किलो का केक तैयार किया, जबकि एआईसीसी इंचार्ज मणिकराव ठाकरे, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का, वुजरा कोमिट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पूनम प्रभाकर, सीतक्का, कोंडा सुरेखा, तुमला नागेश्वर और दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी के वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में मुनक़दा प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन कोदंडा रेड्डी और निरंजन दातेलू ने भी शिरकत की। सोनिया गांधी गारी जन्मदिनं रोजु केक कट చేసే అర్హత, హక్కు, అధికారం ఉన్న మాజీ పీసీసీ అధ్యక్షులు హనుమంతరావు గారు, ఇతర కీలకమైన నాయకులందరూ వేదిక మీద ఉన్నారు। మా సహచర మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, అదేవిధంగా పార్టీలో వివిధ హోదాలలో ఉన్న మిత్రులు అందరికంటే ఈ అధికారంలోకి తీసుకురావడానికి తమ రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి భుజాలు కాయలు కాసేలా జెండా మోసి ఈరోజు మేమందరం ఈ కుర్చీలో ఉన్నామంటే सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी वो कोत्तागुड़म के एमएलए कोन्नानी सांबशिवराव ने खानसास असेंबली में बतौर खानसास हलफ लिया। భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడైన కోనంనేని సాంబశివరావు అనే నేను సభా నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలు పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। శ్రీ కుందూరు జేవీర్ గారు वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वुज़रा को महकमे अलॉट किए हैं। इसके लिए रेवंत ने एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर लीडर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के साथ आधी रात तक तवील मीटिंग की। महकमे फाइनेंस बरक़ी भट्टी विक्रमार्का, उमूर मुक़न्नना, IT डिपार्टमेंट श्रीधर बाबू, महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा
रेवेन्यू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, महकमे सिविल सप्लाईज आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, महकमे सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, R&B सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेंट कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी, महकमे ट्रांसपोर्ट BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर, पंचायत राज महकमा सीतक्का, महकमे ज़राअत तमला नागेश्वर राव, महकमे जंगलात कोंडा सुरेखा, महकमे एक्साइज हजूपल्ली कृष्णा राव को दिया गया है। पोती चिरंजीवी अरफा की सालगिरह के मौके पर केयर एंड कंसर्न सेवा तंजीम ने हैदराबाद के ASI के 35 जहनी तौर पर माजूर तलबा में मिठाइयां, बिस्किट, कर्री और फल तकसीम किए। इस दौरान शेख सत्तार हैदराबाद कौमी सदर नूर बाश ऑल इंडिया दलित मुस्लिम SC रिजर्वेशन फोरम सेल मौजूद रहे। గుడ్ వెరీ గుడ్ నువ్వు ఇచ్చినప్పుడు చెప్పు తీసుకోమ్మా తీస్తున్నా అందరూ అయిపోయారా? అయిపోయింది। साबिक वजीर हरीश राव ने असम्बली मीडिया पॉइंट पर कहा, तमाम नए हलफ उठाने वालों को मुबारक हो। हुक्मरान जमात हो या अपोजिशन, हम हमेशा आवाम के साथ खड़े रहेंगे। तमाम किसान रियासती हुकूमत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान कहते थे चावल बेचो, हम चावल बोनस से खरीदेंगे। इख्तिदार में आकर बताएं 500 रुपए के बोनस से चावल कब खरीदेंगे। और कहा है कि तूफान की वजह से बाज मकामात पर धान गीले हो गए हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। काला पत्थर रंजन कॉलोनी में एक घर में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें घर का सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। ताहम इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता काफी माली नुकसान पहुंचा है। आइए सुनते हैं घर वालों का क्या कहना है। ये अलमारी के अंदर पूरे मेरे सर्टिफिकेट्स मौजूद थे। कोई सर्टिफिकेट इंटर का था, 10th का था और डिप्लोमा इन एजुकेशन करा मैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी वो थे। जामे निजामिया से खिरत, इमामत, खिताबत, खज़ात के इम्तिहान दिए उसके सर्टिफिकेट थे। और मेरा पासपोर्ट था, मेरा आधार कार्ड था, मेरे बच्चों के सर्टिफिकेट थे, मेरे बच्चों की पढ़ाई की चीज़ें थे, मेरे बच्चों के आधार कार्ड थे, हर चीज़ मौजूद थी। सब आप देख रहे हैं कि पूरा जल के खाकिस्तर हो गया है, कोई चीज़ बाकी नहीं रही। जिले संभल के चंदूसी कोतवाली इलाके में मामूली तनाजे में एक नौजवान को गोली मार दी गई। तशवीशनाक हालत में मुरादाबाद रेफर किया गया। संभल जिले के चंदूसी कोतवाली इलाके के बिसोली गेट में उस वक्त हलचल मच गई जब आसपास के लोगों ने सुना कि गोली चली है। यह वाकया 8 बजे उस वक्त पेश आया जब मामूली झगड़े की वजह से मेहनता ताजर के एक मुलाजिम को मेहनता ताजर ने गोली मार दी। महिला महाजन के रिहायशी हरि ओम 50 साल को मामूली तनाजे पर गोली मार दी गई, जिसे एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है और डॉक्टरों ने उसे मुरादाबाद के रेफर किए गए हैं। और इत्तला मिलते ही अदालती डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह और कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर वीरेंद्र तोमर मौके पर पहुंच गए। थाना चंदौसी के मोहल्ला बिसौली गेट के रहने वाले हरिओम मिश्रा को उसके पड़ोसी द्वारा 4 दिन पूर्व हुए विवाद के कारण आज गोली मारकर घायल कर देने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना पुलिस फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंची। निरीक्षण घटनास्थल किया गया। घायल को अस्पताल के लिए इलाज के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनकी स्थिति स्थिर बताई गई। परिजनों द्वारा लिखित तहरीर देते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है। शीघ्र ही अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की जाएगी। शांति व्यवस्था मौके पर कायम। सब एक घायल आदमी व्यक्ति आपके पास आया था, क्या मामला है, कैसी थी? हाँ, अभी एक हरिओम मिश्रा नाम के पेशेंट यहाँ पे आए थे, जिनके दाईं तरफ छाती पे और बाएं वाले कंधे के बाजू पे, ऊपर की बाजू पे, जो कि किसी अग्नेयास्त्र से गोली लगे हुए जिसे बोलते हैं वो उस तरीके की चोट लगी हुई महसूस हो रही थी, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए जिला अस्पताल संभल के लिए हमने रेफर कर दिया। सर, कितनी गोलियां बताई जा रही हैं? ये 2 स्थान पे लगी है, एक तो दाईं तरफ छाती पे लगी हुई है ऊपर की ओर और एक बाएं वाली बाजू पे है
ऊपर बाजू पे। बच्चे की हालत कैसी है, कहाँ रेफर किया गया? अगर छाती की स्थिति देखी जाए, खोली अंदर है अभी, क्योंकि एक ही वूंड बना है, तो स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती छाती पे, क्योंकि वहाँ फेफड़े और हमारी नसें भी आती है, नाजुक स्थिति में अच्छा नहीं होता। तो इसलिए हमने जिला अस्पताल संभल ही भेजा है। पहले तो वहाँ सर्जन भी हैं, उसके बाद आगे के लिए जो अगर वो कहीं भी, उसके लिए वो स्वतंत्र जाने के लिए। सामाजिक कारकुन उमेश गे ने एक प्रेस बयान में 10 सुलगते हुए मसाइल पर सवालों के जवाब देने को कहा है, जिसमें 3 दिनों में जिले में सरकारी जगह खाली करने और अराजी पर कब्जे के लिए सख्त कार्रवाई करना शामिल है। इस सिलसिले में उन्होंने जिले कलेक्टर्स और जिले पंचायत के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को अलग अलग अपीलें पेश की है और कहा कि यादगिरी जिले में सुलगते हुए मसाइल के हल के लिए अवाम की जानिब से दर्ज झैल सवालात उनके सामने रखे जा रहे हैं। उनका जवाब 3 दिन के अंदर प्रेस बयान में दिया जाए और अवाम को मालूमात फराहम की जाए। ಮುದ್ನಾಳ ಮತ್ತು ಗೋಡ್ಯಾಳ ಮತ್ತು ಟೋಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಒ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಯಾಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ? ಈ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ವರ್ತಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಈಗ ನೀವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿ ಅವರು ತಮಗೆ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲಾರದೆ, ಈಗ ಚರಂಡಿ ಇರ್ಲಾರ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಾಗ ಅದೇ ನೀರು ಗಲೀಜು ನೀರು ಮ್ಯಾಗ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರ್ತಿದ್ವು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅದೇ ಗಲೀಜು ನೀರನ್ನು ತೊಳೆದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಯದ. ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ರಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ರಿ. ಮುಲಾಜಿ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರವರೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಕತ್ತಾರ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಸಿ ಕಚೇರಿ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇವ್ರೇನದ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. भैंसा में मार्केट इलाके में वाक़ कांग्रेस पार्टी दफ्तर में साबिक़ सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की 77वीं सालगिरह तकरीब मनाते हुए कांग्रेस कायदीन ने केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाकर मुबारकबाद पेश की। बाद दोपहर 2 बजे भैंसा बस स्टैंड पहुंचकर रियासत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के वादे के मुताबिक महालक्ष्मी गारंटी स्कीम के तहत तेलंगाना खवातीन के लिए आरटीसी बस में मुफ्त सफर का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन जिनमें आनंद राव पटेल, एम ए लतीफ फजलई, अक़लियती जनरल सेक्रेटरी अहमद मुहिउद्दीन, साबिक़ा बल्दिया चेयरमैन अहमद खान, हवलदार ओम प्रकाश लड्डा, शंकर चंद्र, चंदुलाल, काउंसलर भूमन्ना, सैयद शाहिद मल्लन, मकसूद खान, शेख अहद साहिल, जावेद खान, हाफिजुल्लाह खान और अब्दुल बारी, आमिर खान, मतीन खान, मोहम्मद मुईस के अलावा भैंसा के खवातीन डॉक्टर्स जिनमें पद्मावती, वनजा, दीपा और महकमे आरटीसी असिस्टेंट मैनेजर श्रीलता व दीगर, भूमन्ना स्टेशन मैनेजर सुरेशा, मोहम्मद हक व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। जो वादा किया था श्रीमती सोनिया गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर तेलंगाना की 4 करोड़ अवाम को सोनिया गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर एक तोहफा देते बोल के उस हम लीडर की जो है वो लीडर को आभार व्यक्त करते। तेलंगाना राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार लाए, पूरा का पूरा क्रेडिट मैं हमारे टाइगर रेवंत रेड्डी साहब करोड़ अवाम और पूरे राज्य के कार्यकर्ताओं जिन्होंने रात दिन मेहनत करते हुए तेलंगाना की सरकार बनाने में अहम रोल अदा करे। मैं इसी मौके पर जो है तमाम कार्यकर्ताओं को बोलना चाह रहा हूँ, MP एक्स हो सकता है, MLA एक्स हो सकता है। आवाज बंद करते हैं भाई साहब, आवाज बंद करो। साउथ ईस्ट जोन की टास्क फोर्स टीम ने एक जायदाद के मुजरिम को गिरफ्तार किया और तकरीबन 3,15,000 रुपए मालियत की जायदाद बरामद की। कमिश्नर के टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन टीम हैदराबाद ने संतोष नगर पुलिस के साथ मिलकर जायदाद के एक मुजरिम मोहम्मद आरिफ साकिन जहानुमा को गिरफ्तार किया, जिसने एक मकान से तकरीबन 3,15,000 रुपए की जायदाद चोरी की थी। माला वेलफेयर एसोसिएशन के जिले सदर आलूर भूमना ने रियासत तेलंगाना में तश्कील पाने वाली नई हुकूमत को मुबारकबाद पेश की और जिले में पुरअमन तरीके से असम्बली इंतखाबात की इनेकाद पर जिले कलेक्टर और पुलिस सुपरिटेंडेंट का शुक्रिया अदा किया। और हफ्ते के रोज वो माला वेलफेयर एसोसिएशन मेंबरान के हमरा शहर मुस्तकिल के प्रेस क्लब में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने रियासत तेलंगाना में माला तबके से ताल्लुक रखने वाले 9 अराकीन असम्बली को मुंतखब करने पर रियासत के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा है कि नई हुकूमत आईनी तौर पर जमहूरी इक़्तिदार और सियासी तौर पर
पछड़े हुए तबकात के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मुतालबा किया कि गड्डम विवेक वेंकट स्वामी जो मुतहदा आदिलाबाद जिले के चिनूर हल्के से रुकन असम्बली मुंतखब हुए, उनको रियासती काबीना में वजीर के तौर पर मौका दिया जाए और समाजी तौर पर मुनासिब ओहदा फराहम करने की अपील की गई। इस मौके पर देवी दास गोपुलावर प्रसाद गेनी प्रकाश व दीगर मौजूद रहे। माल संक्षेम संघम जिला शाख आध्वर्यंलो गत 30 तारीखु निर्वहिंचिनटुवंटि एन्निकల్లో कांग्रेस प्रभुत्వం అధికారంలోకి రావడం జరిగింది। వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టరు ఆదిలాబాద్ ఎస్పీ గారు జిల్లాలో చాలా ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు నిర్వహించినందుకు వారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। మిత్రులారా, ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి భావజాలంతో నడుస్తున్నటువంటి మాలలు ఐక్యంగా ఉండి చైతన్యవంతంగా ఉండి 9 మంది ఎమ్మెల్యేలను మాలలకు సంబంధించిన మాల సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి 9 మంది ఎమ్మెల్యేలను ఎన్నుకున్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా శాఖ పక్షాన వారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। మిత్రులారా, ఇవాళ రాజ్యాంగం వర్ధిల్లాలి, ఇవాళ భారత రాజ్యాంగ విలువల్ని ప్రజాస్వామిక విలువల్ని ఇవాళ కాపాడాలని చెప్పేసి కొత్త ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఇవాళ గత కాలం నుంచి కూడా ఎంతో కాలం నుంచి ఇవాళ మాలలు అనగదొక్కబడతా ఉన్నారు, అనగారిన వర్గాలుగా ఉన్నారు। కాబట్టి వారిని ఆర్థికంగా సామాజికంగా ఉపాధి రంగాల్లో మాలలందరికీ కూడా సమాన అవకాశాలు కల్పించాలని చెప్పేసి వారికి సమాన ప్రాతినిధ్యము రాజకీయ పరంగా సామాజికంగా ఉద్యోగ పరంగా కల్పించాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఇవాళ మాల సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి అచ్చంపేట గాని, ఇవాళ సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ గాని, బెల్లంపల్లి గాని, చెన్నూరు గాని, అలాగే వివేక్ గాని, గడ్డం వినోద్ గారు గాని ఇవాళ ఒక స్ఫూర్తితోని ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి వాళ్ళని ఇవాళ ప్రజలు ఒక చైతన్య స్ఫూర్తితో ఎన్నుకున్నందుకు వారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మిత్రులారా, అలాగే ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 12 మందిని మంత్రివర్గంలోకి తీసుకున్నది। ఖచ్చితంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా మాల సంక్షేమ సంఘం నుండి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము। మాల సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి గడ్డం వివేక్ వెంకట స్వామి గారిని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కేబినెట్ లో మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా ఈ వేదిక ముఖంగా పత్రికా మీడియా ప్రింట్ మీడియా సమావేశం ముఖంగా వారిని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। తప్పనిసరిగా మాలలకు రాష్ట్రంలో సముచిత స్థానం లభిస్తుందని చెప్పేసి తప్పనిసరిగా వాళ్ళ మాలలు ఒకవేళ మంచి చేస్తే రాజ్యాంగానికి కట్టుబడి సామాజిక విలువలకు కట్టుబడి బాబాసాహెబ్ భావజాలంతో కనుక ముందుకెళ్తే తప్పనిసరిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తాం। తప్పనిసరిగా మాలలకు అన్ని రంగాల్లో సముచిత స్థానం కల్పించాలని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా వారిని మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా విన్నవించుకుంటామని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాం। జై భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్। प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी GH अहमद भट्ट के एजाज में शानदार अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया गया। अलविदाई तकरीब का एहतमाम उनके अमले ने किया था और पार्टी में समाज के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल डरंग ने जेब खाग और महकमे तालीम के दीगर अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब के दौरान रिटायर होने वाले असातिज़ा की खिदमात पर रोशनी डाली और कहा कि रिटायर होने वाले माहिर तालीम ने हमेशा अपनी उंगलियों पर डटा रहा और अपनी सर्विस के दौरान मियारी तालीम फराहम किया। उन्होंने रिटायर होने वाले माहिर तालीम की अनथक अप्रोच, वक्त की पाबंदी, लगन और ईमानदारी को सराहा। भट्ट साहब है वो इस महीने सबकदोश हो रहे हैं 35 साल सर्विस एजुकेशन डिपार्टमेंट को देकर और वो इस महीने सबकदोश हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज आखिरी दिन है हायर सेकेंडरी हाई स्कूल्स का, तो हमने आज उनके इसमें एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ की थी उसके एजाज़ में। जो है भट्ट साहब एक मुदब्बिर और आला पाया के एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक मंजे हुए ऑफिसर थे। इसके अलावा एक बेहतरीन ये तालीमी माहिर थे। और भट्ट साहब कि एक बहुत बड़ी बात ये थी कि उसकी ऑनेस्टी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। उसने 35 साल सर्विस में बहुत ज़्यादा कारनामे अंजाम दिए हैं और मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और मैंने उन्हें बहुत लायक ऑफिसर, लायक इंसान पाया है। तो मैं भट्ट साहब को विदा करना चाहूँगा आज इस शेर के साथ है दर चश्म ज़दन सोहबत यार आखिर शुद रोए गुलसेर नदीदम बहार आखिर शुद। इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन जिन लोगों ने की उनमें DPO जो एक्स DPO बारामूला अब्दुल मजीद भट्ट साहब थे। इसके अलावा जोनल एजुकेशन ऑफिसर खा गुलाम मुस्तफ़ा डार साहब, हाई स्कूल सुगन के हेडमास्टर नुसरत साहब और यहाँ का जो स्टाफ, सीनियर लेक्चरर्स, वाइस प्रिंसिपल, बहुत सारे लोग जो यहाँ के लोकल्स है, असातिज़ा है और बच्चों ने इस फंक्शन में शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के लिए मुफ्त बस खिदमात शुरू होने के पहले दिन जहां ख़वातीन खुश हैं, वहीं ऑटो चलाने वाले काफी
परेशान हैं। पहले ओला, उबर और रैपिडो ने उनके कारोबार को मुतासर किया था। अब इसके बाद हुकूमत की जानिब से ख्वातीन के मुफ्त बस खिदमात ने उनकी कमर तोड़ दी है। उनका कहना है कि उनके ऑटो पर फाइनेंस है, उसके साथ साथ उनको अपने घर का खर्चा भी चलाना होता है। इसलिए उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया है कि वो ऑटो वालों के लिए भी कोई स्कीम निकाले। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। हुकूमत से गुजारिश करते हैं हम लोग कि ऑटो बस फ्री कर दिए, तो ऑटो वाले हम लोग कैसा जीना। मेरे ऑटो पे 2 लाख का फाइनेंस है, महीना EMI 8,000 रुपए है। हमारे बारे में सोचना, हुकूमत से CM साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं हम लोग। आपका क्या है? कोई गुजारिश है, 2 लाख का फाइनेंस है हमारे ऑटो पे, महीना 10,000 रुपए इंस्टॉलमेंट आता, बनने को मुश्किल हो जाता। बस फ्री करे तो तकलीफ बहुत हो जाता हमारे को, कुछ तो भी हेल्प करे तो अच्छा है। इस बात से नहीं हो रहा कारोबारी, कोई बस फ्री करने से ओला उबर से भी हो रहा, इससे भी हो रहा। अभी ओला उबर था पहले, अभी बस फ्री कर दिए, पूरा कारोबार खराब होगा हमारा। उसी रोड से चलाते थे आप? ये सिटी, पूरा सिटी चलाते थे दरबंद। हाँ, बस चालू हो गए तो कैसा है आपका कारोबार? बहुत प्रॉब्लम है। क्या बोलना चाह रहे हुकूमत से? क्या गुजारिश नहीं, हुकूमत आई है क्या है? हुकूमत हमारे बोलना चाह रहे, ओला उबर रैपिडो बंद करो बोलना चाह रहे। फाइनेंस गाड़ियों के बहुत ज्यादा है, मेरी गाड़ी पे 2.5 लाख रुपए फाइनेंस है, महीना 11,000 रुपए इंस्टॉलमेंट आ रहा है गाड़ी का। अब ऐसा रहा तो क्या कारोबार करेंगे हम लोग? क्या कमाते थे? बस जब फ्री नहीं थे तो जब क्या कमाते? वो अलहमदुल्ला 1,000-1,200 रुपए कर लेते थे। अब सुबह से आगे 400 रुपए नहीं करे, 400 रुपए नहीं हुए। देखा तो इंस्टॉलमेंट कैसा निकालना क्या है समझ नहीं आ रहा। तो उसमें घर का निकालना, गैस का निकालना, फिर अपना खर्चा, हर चीज। कांग्रेस हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? अब कांग्रेस हुकूमत से तो ये कहना चाहते हैं, अब हम लोग बसेस तो फ्री कर दिए, ऑटो वालों के लिए कुछ देखिए आप लोग, कुछ रियायती करिए। 2.5 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट है हमारे, फाइनेंस है गाड़ियों पे, कैसा मिटना। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारे को रैपिडो जो बाइक चला रहे हैं, वो बाइक की वजह से वो बंद कराना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वो तो सिंगल आदमी बाइक लेके चले आ रहा, हम लोग वैसे ही बैठे रह रहे घंटों घंटों। तो रैपिडो बंद होना चाहिए, ओला उबर बंद होना चाहिए। रैपिडो ओला उबर बंद हो गया तो अपना कारोबार हो जाएगा, हो जाएगा। ये बस भी जरा कोशिश करिए, बस के बारे में भी सोचिए, क्योंकि बस फ्री बोलने की वजह से क्या है, बहुत प्रॉब्लम आता हम लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं यूनिटी तेलंगाना ऑटो ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मेहदीपट्टनम जनरल सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ, ऑटो यूनियन लीडर। मैं रेवंत रेड्डी साहब से ये कहना चाह रहा हूँ, आप बसेस फ्री करिए, ऑटो वालों के भी लिए कुछ रियायती करिए, कुछ स्कीम निकालिए ऑटो वालों के लिए। और जो है सो हम लोग को जो है ना, महीना 11,000 रुपये इंस्टॉलमेंट, 2,60,000 रुपये का फाइनेंस है गाड़ी पे, 11,000 रुपये इंस्टॉलमेंट है। अब हम लोग को बनने के लिए बहुत परेशानी हो जाती है। पहले तो ओला उबेर निकला, उसमें कारोबार ख़राब हो गया हम लोग का। सेकंड जो है सो रैपिडो निकला और कारोबार चलेगा। अब आप बसेस फ्री कर दिए, ऑटो वालों के ऊपर तो बहुत मार पड़ जाएगा। ये ऑटो वालों की जीना नहीं जीना बताइए रेवंत रेड्डी साहब, कैसा जीना हम लोग? ऑटो वालों के भी लिए कुछ स्कीम निकालिए, अब ऑटो वालों के भी लिए कुछ अच्छा सोचिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं यूनिटी तेलंगाना ऑटो ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का ट्रेजर बात कर रहा हूँ। ये पिछले हुकूमत जो आई, नई हुकूमत रेवंत रेड्डी के साहब की, उनसे हम ऑटो वाले ये गुजारिश कर रहे हैं, जो स्कीमा निकाल रहे हैं आप, बहुत बेहतर स्कीमा निकाल रहे हैं, मगर किसी का घर को आग लगा के किसी के घर को आबाद करना बेकार है। आप स्कीम निकालो, ऐसी स्कीम निकालो, पढ़ाई के ऊपर स्कीम निकालो, आप पढ़ाई थोड़ी राहत दो। आजकल देखिए मेडिकल का खर्चा ज़्यादा हो जाना, वो नहीं निकालते आप लोग खाली गरीब को तो तबाह करने की बात कर रहे। जिस पिछले गवर्नमेंट में भी ऑटो वालों को गवर्नमेंट बहुत साथ दी, मगर इस बार जो गवर्नमेंट बैठी, ऑटो वाले 5 लाख ऑटो वाले कैसा जीना। आप बसेस फ्री बोल रहे, 10 रुपये 20 रुपये फ्री करके लाखों रुपए खा जा रहे आप लोग। आवाम को क्या फायदा कर रहे? गैस फ्री कर रहे, दूसरी जगह से पैसे डाल दे रहे। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारे को इतने साल से हम ऑटो चला रहे, हर चीज़ कर रहे, हमारे क्या बेनिफिट है? हम आवाम की खिदमत करते। RTC वालों को तो फिर भी PF है, इंश्योरेंस है, सब है, मगर ऑटो वालों को कुछ भी नहीं है। अब हमारी गाड़ियाँ 5-5 लाख रुपए का फाइनेंस होगा, फाइनेंस वाला पड़ता, 5 लाख ऑटो वाले पलते, कैसा गुजारना हमला? फाइनेंस कैसा बनना? EMI कैसा बनना?
हुकूमत जो चाहे समझ में आया ऐसा कर ले रही, ऑटो वालों को कुछ समझ भी नहीं। और हमारे को खुसूसन असेंबली में ये मुद्दा उठना चाहिए, ऑटो वाले कैसा जीना, गरीब लोगों कैसा जीना। हम माजिद खान साहब से, MM से और तमाम हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं, कोई हुकूमत ऑटो वालों का भला सोची नहीं। हम हुकूमत को ये गुजारिश कर रहे हैं, ऑटो वालों को जगह जगह पार्किंग प्लेस दो, जगह जगह पार्किंग प्लेस नहीं देते, फिर उनके बच्चों को पढ़ने के लिए काबिलियत नहीं देते, फिर बोले तो क्या बोले तो जाहिल है बोलते। सबसे बड़ी बात, स्कूलों की जो लूटम लाठी चल रही, जो कॉलेजों की लूटम लाठी चल रही, हुकूमत से हम ये गुजारिश कर रहे हैं वहाँ उसको बेनिफिट देना चाहिए। एजुकेशन के नाम के ऊपर जो धंधा चल रहा वो होना चाहिए। आप लाइट फ्री करो, घर के किराया कम करो, हमला कमाओ नको कमाओ। हर ऑटो वाले को 20,000 रुपये महीना खर्चा है, ऑटो का इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये भरना, घर का किराया वो ये मिला के 15,000 रुपये घर का खर्चा है। कमाओ नको कमाओ, बेचारा घर में भी सोया तो 20,000 रुपये का खर्चा है। इसलिए हम हुकूमत से ये गुजारिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द ये रोका ना जाए तो हम भारी तैनात के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर देंगे। नहीं समझ में आए तो 50,000 में लेकर के ऑटोवा रख देंगे। रेवंत जी साहब, हमारे ऑटोवा किराए के आप एक काम करिए, फाइनेंस क्लियर करके दे डालो, बाकी के आप हम जिम्मेदारी है। अस्सलामुअलैकुम। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत कायम होते ही तेलंगाना के वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने जो वादे किए थे उसमें से ख्वातीन को फ्री बस खदमात शामिल हैं, जिसका आगाज आज 9 दिसंबर से हो गया है। महालक्ष्मी प्रोग्राम के तहत ख्वातीन को तेलंगाना में मुफ्त बस खदमात रहेगी, जिससे ख्वातीन बहुत खुश हैं। कर्नाटका में भी कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर वो हुकूमत में आएगी तो ख्वातीन को मुफ्त बस खदमात देंगी और उन्होंने वादा पूरा किया। इसी तरह तेलंगाना में भी ख्वातीन के लिए मुफ्त बस खदमात का ऐलान किया, जिस पर यकीन करते हुए तेलंगाना की आवाम ने कांग्रेस को हुकूमत बनाने का मौका दिया। हुकूमत बनते ही कांग्रेस ने अपना वादा पूरा किया है, जिससे ख्वातीन बहुत खुश हैं। आइए देखते हैं ख्वातीन ने हाईटेक न्यूज चैनल से बात करते हुए मजीद क्या कहा। नहीं, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक्स। लेडीज लेग के लिए ऐसा सपोर्ट आगे भी मिलता रहे हम लोग को। KCR हटने से हम लोग को कुछ भी ऐसा फीलिंग नहीं होना कि मतलब नहीं, कांग्रेस जीती ना भाई, अब तो हम लोग उनका ही थैंक्स अदा करना चाह रहे हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, खर्चा होता था बसेस में जाने, ऑटो से जाने? नहीं, अभी तो फिलहाल हम लोग को कुल्लूर जाने के लिए 50 रुपए खर्चा आता था बस का, तो वो अभी बच गया समझो टिकट फ्री होने से। थैंक यू। बहुत खुश हूँ, महालक्ष्मी को बस में घूमने के लिए फ्री है, अब किधर भी जा सकते हैं सब जने, बड़े बच्चे सब जने। हम तो बहुत खुश है। रेवंत अन्ना को बहुत शुक्रिया। बच्चों को है, बड़ों को भी है, लेडीज को, पूरे बुजुर्ग को भी है, जेंट्स को टिकट मारना पड़ता बस। कांग्रेस हुकूमत आई, उसके लिए क्या? कांग्रेस अन्ना के लिए हम तो भाई, पहले तो हमारे नए CM साहब को मुबारकबाद पेश करते हुए तेलंगाना की हुकूमत ने एक जो ऐसा बेहतरीन फैसला लिया है, जो तारीखी फैसला है, जो ये महालक्ष्मी प्रोग्राम का, जो हमारे RTC डिपार्टमेंट के लिए, और इसमें हम भरपूर अपने ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। और पब्लिक भी, और सुबह से हम इसमें इसी प्रोग्राम में लगे हुए थे, तो बहुत सारे लोग कब आते इंतजार में जो है। अभी जो है सो अभी गाड़ी का शुरुआत हो गई, और मैं भी इस तारीखी फैसले पे मैं इसमें काम कर रहा हूँ, बल्कि मुझे भी एक खुशी इजहार हो रही है। और शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत इंतजार कर रहे थे सुबह से, मैं देख रहा हूँ, आज ग्राउंड रिपोर्ट है, आज सुबह से है ये। बहुत खुश है, और कामयाबी की तरफ हम काम करेंगे और 100% कामयाब करके रहेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत के लिए जी बहुत थैंक्स करना चाह रही हूँ, क्योंकि हम लोग कॉलेज जाने वाले, ऑफिस जाने वाले रहते हैं ना, और हम लोग को बस पास के लिए अभी बस पास बनवाने की भी ज़रूरत नहीं है, और बसेस चेंज करना पड़ता हम लोगों को, तो अभी फ्री हो गया तो कहीं भी जा सकते हैं इजीली। कहाँ से कहाँ जाने वाले आप लोग? अभी तो हम रिलेटिव्स के घर जाने वाले, तो फिर वहाँ से रिटर्न आना। फ्री जब बसेस में, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ, एंड हम लोग बस पास भी बनवा लेते थे ना, बहुत था, चार्जेस बहुत थे उसके, अभी वो भी बच जाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आप क्या बोलना चाहिए? बहुत खुशी की बात है
कांग्रेस गवर्नमेंट में इनिशिएटिव लिया गया है। ये मैं बिलीव करती हूँ कि पूरे लेडीज को बहुत हेल्पफुल होगा ये प्रोग्राम। अभी तक जो भी सक्सेस देखा है तेलंगाना ने, आरटीसी का बहुत रोल रहा है। हम लोग एज ए स्टूडेंट बस में ट्रैवल करते थे, जो भी सब्सक्रिप्शन मिला तो बहुत हम लोगों को मदद कर रहा है। अभी हम सोचते हैं कि पूरे कॉलेज नहीं, पूरे हर एक फीमेल को ये फैसिलिटी मिलेगा तो और तेलंगाना और भी ग्रो करेगा। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बेरवा हलके से अपने कारकुनों की टाउन हॉल बेरवा में एक मीटिंग का एहतमाम किया है। मीटिंग की सदारत भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जिले सदर बडगाम के सीनियर लीडर अशरफ आजाद, जिले नायब सदर बडगाम मंजूर अहमद भट्ट, जिले बडगाम के जनरल सेक्रेटरी फारूक अहमद भट्ट, हलका इंचार्ज बेरवा जहूर अहमद और दीगर बीजेपी मोर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि कुछ लोग बीजेपी के अवाम दोस्त हुकूमत से मायूस हो चुके हैं। उन्होंने हर जोन में बीजेपी के बूथ लेवल वर्कर्स को मजबूत बनाने पर जोर दिया ताकि लोग बीजेपी की पॉलिसियों और गवर्नेंस मॉडल से वाकिफ हों। जिले सदर बडगाम बीजेपी समीर अहमद शाह के अलावा पार्टी हाईकमान का उनकी जबरदस्त हिमायत और एजाज पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ईदगाह में, ईदगाह श्रीनगर में वाक़या हुआ था कि एक हमारा जो होनहार नौजवान इंस्पेक्टर मसरूर वानी साहब जिस पे गोलियां चला के वो क्रिकेट, हालांकि वो किसी को मारने नहीं जा रहे थे, वो लड़कों के साथ क्रिकेट स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट्स में हर दिन का उनका ये मामूल रहता था, वो क्रिकेट खेलते थे बेचारे। तो उन पे नहते हो के उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। तो ये कौन सी आप वो क्या मैं बताऊँ, ये आगे बात कहने की मुझे वो सख्त नहीं है। अब तो ये कौन सी बहादुरी का काम है? एक निहत्ते नौजवान पे, एक निहत्ते हमारे पुलिस कर्मी पे वो गोलियां चलाएंगे, उसको जख्मी किया वहाँ पे। तो कुछ दिन वो वेंटिलेटर पे रहे। तो फिर हमने वहाँ से सेंटर से बात की थी, तो उनको लिफ्ट ऑफ किया कर, फिर उसको एम्स लिया गया। तो कल वहाँ उन्होंने आखिरी सांस लिया, इस दुनिया फाने से यहाँ शहादत ली गई। तो उनके लिए आज हमने बखूबी एक दुआई मगफिरत भी की, जो हमारा हक बनता है। तो उनके लिए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं आप मीडिया फ्रेटर्निटी, जो हमारे मीडिया बंधु यहाँ पे आए हैं, तो आपको मैं तहे दिल से सलाम कहता हूँ। जो आज हमने यहाँ पे बिरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट जो हमारे जोहर अहमद वानी और डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हमारे फारूक अहमद गनाई साहब और जितने भी हमारे यहाँ पे मोअज़्ज़ज़ हमारे एक्टिव लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन्होंने आज यहाँ पे एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें हमने एक एक्टिव मेंबर्स और हमारे शक्ति केंद्र्स और हमारे बूथ प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं पार्टी के, तो उन्होंने शिरकत की थी। तो लगभग 200 के करीब हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता आए थे। एक अच्छी मीटिंग, फ्रूटफुल मीटिंग हुई यहाँ पे। इसमें हमने यही एजेंडा रखा था कि हम पार्लियामेंट इलेक्शन के रिलेटेड और जो हम आने वाले जो इलेक्शन से हम बूथ लेवल पे कैसे मजबूत होंगे। और हम जातीय मलाला इक्या वेदिका स्टेट प्रेसिडेंट कर्नम किशन ने आज प्रेस क्लब में एक मीटिंग के दौरान हाईटेक टीवी से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं और आदिलाबाद से एसटी के लोगों को पोस्ट देने की भी गुजारिश की है। देखते हैं उन्होंने और मजीद क्या कहा। साहब जय भीम, मेरा नाम कर्नम किशन है। मैं जातीय माला ऐक्य वेदिका ओर से बात कर रहा हूँ। मैं जातीय माला ऐक्य वेदिका अध्यक्ष हूँ। आज तेलंगाना माला फोरम से हमारे डिमांड एक ही डिमांड है। इलेक्शन के बिफोर भी हम लोग काम कर चुके हैं। बेशर्त में हमें कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट दिए। पूरे जितने भी जिला है, पूरे जिला फिरकर पूरे जिलाओं में जाकर वहाँ पर उनको मदद करे, यानी प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस चीज़ में हम बता दिए कि अब ये हुकूमत को, हम ये मरकज़ी हुकूमत को बर्खास्त करके कांग्रेस की हुकूमत लाना बोल के हम मदद करें। उस तरीके से अल्लाह रसूल ने हमारी बात कबूल कर ली, हमारा बात रखे, हमारे बात पे कांग्रेस की हुकूमत आ गई। हम माननीय आज कांग्रेस गवर्नमेंट की जो वज़ीर आज़म है, हमारे माननीय रेवंत रेड्डी साहब को बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करते हैं। हमने यहाँ पर तेलंगाना में मुख्यमंत्री बन चुके हैं और जितने भी जिलाओं से इलेक्ट हुए उतने से वहाँ पर मंत्रिमंडल भी बना चुके हैं। वो मंत्रिमंडल में यानी
करीमनगर, निज़ामाबाद, वरंगल, महबूब नगर, ये एरिया में पूरे लोगों को यानी मंत्रिमंडल में स्थान ग्रहण हुआ। लेकिन यानी हैदराबाद से बहुत दूर जंगल एरिया है, ड्राट एरिया है, वहाँ पर SC ST BC माइनॉरिटी लोग रहते हैं। वहाँ पर हैदराबाद आने के लिए बहुत मुश्किल होती है, वहाँ पढ़ने के लिए वो सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है बराबर। वो एरिया को डेवलपमेंट होना बोले तो वहाँ पर वो इलेक्टेड वो विधायक है, वो विधायकों से किसी को भी एक ऐसी विधायक को यानी मंत्रिमंडल में उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए। अगर मंत्रिमंडल में उनको दे दिया तो वहाँ पर जितने भी गरीब लोग हैं, SC ST लोग हैं, वो लोगों की यानी कामकाज, उनकी रोज़गार, उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके जो भी उनकी जो तबीयत के बारे में हर चीज़ में मदद हो सकती है। हम रेवंत रेड्डी साहब जी से और कांग्रेस हुकूमत से, कांग्रेस से जो जितने भी उन्नति स्थान पे है वो लोगों की हम गुजारिश कर रहे, हम शुक्रिया अदा कर रहे, हमको रिक्वेस्ट कर रहे कि वहाँ पर आदिलाबाद से वो SC कैंडिडेट को कंपलसरी वहाँ पर मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे। ये बहुत ज़रूरी है। आदिलाबाद जिला डेवलपमेंट होना तो वहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो कुछ भी हो सकता, डेवलपमेंट हो सकता। वो कांग्रेस गवर्नमेंट से वहाँ पर कांग्रेस की जो विधायक चुने गए वो विधायकों से किसी को भी ऐसी कोई वहाँ पर मंत्रिमंडल में स्थान देना बोल के हमारी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। हमें हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री छोटे उम्र में तेलंगाना में वज़ीर आज़म बने, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आदिलाबाद डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर मंत्री बनाए बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे, शुक्रिया अदा कर रहे। जय भीम, जय अम्बेडकर, जय संविधान। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने घाटकोपर में माता रमाबाई नगर का दौरा किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले पर फूल चढ़ाकर सलामी दी। इसके बाद वज़ीर आला ने कैंपस में सफाई मुहिम की क़यादत की। चीफ मिनिस्टर शिंदे ने सफाई के कारकुनों से बातचीत की। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई कारकुन मुंबई को साफ सुथरा रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। इसी वजह से मुंबई साफ और खूबसूरत है और सफाई कारकुन सच्चे हीरो हैं। जमीयतुल मोमिनात की जानिब से 2 यौमी जश्न कुरान मजीद तकरीब मुनक्किद की गई है। इस मौके पर मुमताज आलिम दीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। आइए देखते हैं तकरीब की कुछ खास झलकियां। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तकमील आज हुई है। इसी के ज़िमन में और मसरत मौके पर 2 रोज़ा मैंने अपने कुरान तफसीर का अहतमाम किया जा रहा है। इसका पहला इजलास आज 9 दिसंबर 2023 बरोज़ हफ्ता पीर तरीक़त फज़ीलत शेख हज़रत मौलाना शहज़ादे गौसे आज़म सैयद महमूद हुसैनी अल-क़ादरी अल-रिफ़ाई सादात पीर बगदादी साहब की सरकर्दगी में, निगरानी में, सरपरस्ती में इस इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह लगभग कसीर तादाद में उलमाए किराम, शौकीन इंसान, दानिश्वरान हज़रात, प्रोफेसर, दीगर स्कॉलर्स ने शिरकत की है। जामियतुल मोमिनात का रोज़े अव्वल से ये नस्बुल आइन है। जिस तरह बाज़ाब्ता फ़ुक़रान इस्लाम को दीनी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए, हमेशा जामियतुल मोमिनात की अपना नस्बुल आइन समझकर इसको जारी व सारी रखा है। और इसी तरह जहाँ ज़रूरत महसूस होती है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह के दरस फ़िक़्ह है, दरस हदीस है, दरस बुखारी है और दीगर जो अहम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मसाइल पेश आते हैं, यहाँ के मौलविमात जाकर वहाँ पर अपना खिताब करती हैं और जो पेचीदा जो मसाइल है उसको हल करने की हद इम्कान कोशिश करती है। स्कॉलर्स इसी तरह अमल पैरा होती है। इसी तरह जामियतुल मोमिनात का दूसरा जो हिस्सा है वह है कुल्लियतुल बनीन जामियतुल मोमिनात है, जो लड़कों का मदरसा है। वहाँ पर भी जिस तरह जामियतुल मोमिनात में बाज़ाब्ता जमात अव्वल का तख़स्सुस फिल फ़िक़्ह और शब हिफ्ज़ का नज़्म है, इसी तरह वहाँ पर भी यही नज़्म जारी व सारी है। अपनाए इस्लाम उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में यहाँ के फ़ारिग़ीन शहर नहीं बल्कि शहर के अलावा रियासत, बैरूनी रियासत, यहाँ तक कि बैरूनी ममालिक में भी यहाँ के फ़ारिग़ीन जाकर
दीन की इशाअत में हमतन मसरूफ़ है। हमारे सादत पीर बगदादी साहब की हमेशा दामे दिरहम सुखन हर एतबार से इस जामिया को सरपरस्ती हासिल रहती है। दुआएं देते हैं। इन जैसे जो बुजुर्गान दीन है हमारे जामिया को हमेशा दुआओं में शामिल रखते हैं और इसको परवान चढ़ाने के लिए अपनी ख़ास खुसूसी दुआओं में शामिल रख के इस जामिया को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो कोशिश होती है उसमें मददगार और सरपरस्ती फरमाते हैं। तो बहरहाल आज खुद मसरत मौजूदे पर मैं जो इस जामिया के बानी हैं मौलाना डॉक्टर मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना यहाँ के तालिबात को बाज़ाब्ता तौर पर तहज्जुद की नमाज़ में उठाते हैं। इसके बाद तहज्जुद पढ़ी जाती है, फजर पढ़ी जाती है। फजर के बाद उन्होंने ये दर्स तफसीर का सिलसिला को जारी व सारी रखा है। 25 साल अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं। उसी ज़मन में आज इजलास अव्वल का इनकाद अमल में लाया गया है। आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज कंजिस नवाज रेड्डी ने कहा है कि आदिलाबाद इंतखाबात में वो जीते या हारे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आवाम के दरमियान रहते हुए काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमने बदउनवान बीआरएस हुकूमत को उखाड़ फेंकना और हमने अवाम की हिमायत से तेलंगाना में कांग्रेस की अवामी हुकूमत बनाई है। एआईसीसी की सरबराह सोनिया गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने कंजिस नवाज रेड्डी की क़ियादत में एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया। ये रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए अम्बेडकर चौक तक पहुंची। मुकामी अम्बेडकर चौक पर अम्बेडकर के मुजस्समे को खराज अकीदत पेश करने के बाद सोनिया गांधी के सालगिरह पर 77 किलो का एक बड़ा केक काटकर जश्न मनाया। कारकुनों ने झंडे उठा रखे थे और जय कांग्रेस, जय सोनिया अम्मा, जय रेवंत रेड्डी, जय कंजिस नवाज के नारे लगाए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए कंजिस नवाज रेड्डी ने इस दिन को याद किया जब सोनिया अम्मा ने एक दहाई कबल 9 दिसंबर को तेलंगाना के अवाम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को उनके सालगिरह पर तोहफा दिया जा रहा। కొందరు అంటుళ్ళు 6 కోట్లకు అమ్ముడుపోయిందట, అతను కొందరు అంటుళ్ళు 15 కోట్లకు అమ్ముడుపోయిందట। డబ్బుల మూటలు బాగా లెక్క పెట్టుకున్నావా? ఇంకొక ఆమె 2 సార్లు టికెట్ తో పోటీ చేసిందా లేదా? సిగ్గు లేకుండా జోగురామన్న బూట్ల దగ్గర ఊకున్నది ఇప్పుడు ఆమె, అవునా కాదా? ఏ జోగురామన్నని మనం చిత్తుగా ఓడించాలనుకున్నామా? జోగురామన్న బూట్ల దగ్గర పోయి కూకున్నది ఆమె, అవునా కాదా? ఇంకొకడు ఎట్లనే చూసినావు కదా, దొంగ నాటకం ఆడిండు। నేనెప్పుడు కూడా బయట పెట్టలేదు। ఆ మాజీ డిసిసి అధ్యక్షుడు నన్ను 20 కోట్లు అడిగిండు, నన్ను 20 కోట్ల రూపాయలు అడిగిండు। నా బిడ్డ సాక్షిగా, నా భార్య సాక్షిగా చెప్తున్నా, 20 కోట్లు అడిగిండు నన్ను। నా భార్య సాక్షిగా, అంబేద్కర్ మహనీయుని సాక్షిగా, నేను ప్రేమించే దేవుని సాక్షిగా చెప్తున్నా, 20 కోట్ల రూపాయలు అడిగిండు మాజీ డిసిసి అధ్యక్షుడు, 20 కోట్ల రూపాయలు అడిగిండు। ఇంకా ఇద్దరు గవ అడిగేటప్పుడు ఇద్దరు గవ బతికే ఉన్నారు, ఇంకా బతికే ఉన్నారు। ఆ గవని కూడా మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తా। 20 కోట్లు అడిగిండు ఆ మాజీ డిసిసి అధ్యక్షుడు। నేనన్నా ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, 20 కోట్ల ముఖమేనా? ఆ ముఖంకి 20 కోట్ల 100 ఓట్ల నచ్చినాయా? కౌన్సిలర్ గా పోటీ చేస్తే వచ్చినాయా? ఈ ద్రోహులందరూ జోగు రామన్నకు అమ్ముడుపోయిందా లేదా? ఒకడు మెల్లికన్ను రాక్షసుడు ఉంటాడు, మెల్లికన్ను బేతాళ మాంత్రికుడు ఉంటాడు, వాడే బ్రోకర్। వీళ్ళందరినీ తీసుకుపోయి కేటీఆర్ కు కేసీఆర్ కు కలిపింది వాడే, అవునా కాదా? ఈ నలుగురిని కూడా మంచికి 500 ఓట్లు కూడా రాకపోయా కదరా నాయన, 2000 కూడా దాటకపోయారు కదరా నాయన। దాటినాయా? ఇంకా సిగ్గు లేకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీలకి వస్తారట, కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తే చెప్పులతో కొడతారా లేదా? అందరూ కొడతారా లేదా? ఈ నలుగురు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తాడే చెప్పులతో కొడతారా లేదా? చీపులతో తరుముతారా లేదా? సిగ్గు లేకుండా వ్యవసాయం చేసుకోపోయి బతుకురా నాయన అంటున్నారు ప్రజలందరూ। ఏదేమైనా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకు 50,000 దాదాపు 50,000 ప్రజలు ఓట్లేసిండ్రు, వాళ్ళ ఆకాంక్షల్ని ప్రతిబింబించినాం, మనల్ని కాపాడుకున్నారు। ఇక నుంచి మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినాం కానీ మనం పాలకులం కాదు, మనం సేవకులం, అవునా కాదా?
మనం సేవకులం, ప్రజలకు సేవ చేద్దాం. మనకు ఓటెయ్యని ఇంకా 1,20,000 మందిని మనం హక్కున చేర్చుకుందాం. ఇంకా 1,30,000 మంది గడప గడపకి వెళ్దాం, గుండె గుండెలకు వెళ్దాం. వాళ్ళందరూ మన వాళ్ళే. ఓటెయ్యాలని ఉన్నా కూడా ఈ దొంగలు మతం పేరు మీద చిచ్చు లేపిండ్రు. దొంగలు లేపిండా లేరా? నేను గెలిచినా ఓడినా ఆదిలాబాద్ గడ్డ మీదే ఉంటా. ఇదే అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో ఉంటా. నా కార్యకర్తల్ని కాపాడుకుంటా. నా కార్యకర్తల మీద ఎవరైనా చేతేస్తే ఆదిలాబాద్ నుంచి తరిమి కొడతాం బిడ్డ. నా కార్యకర్తల జోలికి ఎవరు వచ్చినా, కాంగ్రెస్ పార్టీ జోలికి కానీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల జోలికి కానీ, కార్యకర్తల జోలికి కానీ ఎవరు వచ్చినా వదిలిపెట్టేది లేదు, వదిలిపెట్టేది లేదు. సోనియా గాంధీ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈరోజు 27 కిలోల కేకుని కట్ చేస్తున్నాం. మీరందరూ కూడా ఈ ర్యాలీకి వచ్చినందుకు పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నా. आम लोगों की शिकायत को दूर करने और मसाइल की निशानदही करने और बाहमी ताउन से ऐसे हल तैयार करने के जारी अमल में जो पुलिस कम्युनिटी की शिराकत को बेहतर बनाते हैं, एतमाद को मजबूत बनाकर अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाते हैं, SSP कुलगाम की हिदायत पर जिले पुलिस कुलगाम, पुलिस स्टेशन कुलगाम, पुलिस स्टेशन कंड, पुलिस स्टेशन DH-पुरा, पुलिस स्टेशन यारीपुरा, पुलिस स्टेशन खाजीगुंड, पुलिस पोस्ट फरीसाल में PCBG कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप मीटिंग्स का इनेकाद किया गया। इजलासों की सदारत मुतल्लिका दायरे इख्तियार के अफसरान ने की और उनमें मौजूद शहरियों ने शिरकत की। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने राजभवन हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी को रुकन खनसास असम्बली के प्रोटेम स्पीकर तेलंगाना रियासती खनसास असम्बली के ओहदे का हलफ दिलाया। वज़ीर आला, काबीना के वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर मौजूदीन इस मौके पर मौजूद थे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।